Good morning, class. Okay, class, as we have already discussed the different steps of the sexual reproduction in the flowering plants, and in those different steps, we have already completed about the double fertilization. We have discussed the structure of flower also, and now we will discuss another very important step, and that is called pollination. Although pollination comes before all the different steps, like pollination comes before like double fertilization, but we have already discussed that. But now from today we will be talking about the pollination. So as the pollination is concerned, pollination is the as I have written down the definition of this, the process or mechanism by which pollen grains are transferred from anther of a stamen to the stigma of carpel. So you are very much familiar with these words, that is the stamen, and as well as there is another word is the carpel. You know, this is the male part of the flower and carpel is the female part of the flower, and pollination is carried out by the different agents. So all these different agents which help in the pollination, it's carried out either by insects or by wind or by water. In our syllabus, we will be discussing only the pollination by insects and pollination by the wind. The structure of this is a very important point. The structure of the flower is very much related with the kind of agents which are involved in pollination. About this point, I will explain this point with the help of some diagrams. I'll show you some of the like flowers which are the insect pollinated flowers and the wind pollinated flowers, and we will see that what is the difference in their petals, in their sepals, in their all these different how their stamen and carpel are arranged in case of insect pollinated flower and the wind pollinated flower. And that is also the insect pollinated and wind pollinated flowers are also given in the form of a like there is a table is also given in our book, on the basis of which we can understand or we can clarify the concept of insect pollinated flower and wind pollinated flower. The pollination is of two major types. So the one is called self pollination beta and other is called the cross pollination. So see, there are two different flowers that have already drawn in this one. The one flower is I have drawn two flowers on plant A and one flower on plant B. So if the pollen grains are transferred, from the stamen, from the anther to the stigma of same flower, like this one, from the anther to the stigma of same flower, or from the anther to the stigma of another flower, but that flower is also on the same plant, that one is known as the as we have mentioned, it's called self pollination. If its pollen grains are fallen on this, if its pollen grain are fallen on this, but these two flowers are on the same plant, this is known as the we call it the self pollination. But if the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of an other flower on another plant, from plant B to plant A, but of same type. So you can see the type of the flower is same. So here is the explanation for these two types of the pollination is also given. The most important topic in this pollination is जब भी आपने कभी पोलिनेशन को बेटा एक्सप्लेन करना हो तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपने ये भी बताना है कि पोलिनेशन जो है वो किस तरह से होती है, एंड देन दिस इज़ वन इज़ द सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी जो है वो क्रॉस, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए. और बेटा पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन मेन कॉज है फॉर द like it's the main cause for the variation in the plants. तो plants के अंदर जो variation होती है वो variation basically pollination, एक flower के pollen grain दूसरे के ऊपर fall करते हैं, तो as a result of that वो नई varieties जो हैं वो उसके अंदर produce होती हैं. आपको बेटा अभी मैं book से जो है वो एक diagram
आपको दिखाता हूँ, और उस डायग्राम में आप विंड पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स जो है उनके बारे में आप देखोगे कि उनकी जो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, इन सारों की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होती है। ओके क्लास, लुक एट दिस इज अब इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। अगर आप इस फ्लावर को बेटा देखो तो ये एक इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है। हमारी बुक में तो इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनी हुई है इसकी, लेकिन ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है। और इसके बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसकी जो लाइक पेटल्स हैं वो बहुत ब्राइटली कलर्ड है। तो ये ब्राइटली कलर्ड होने की वजह से बेटा ये पेटल्स जो हैं वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और उसके बाद बेटा इन्हीं पेटल्स को अगर हम अलग अलग देखें तो ये इसको जो है वो स्टैंडर्ड पेटल इसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो छोटी वाली होती हैं इनको विंग पेटल्स बोलते हैं। और ये जो हैं ये कील पेटल्स जो हैं ये सारी की सारी पेटल्स हैं। और ये इन पेटल्स की वजह ही से जो है वो इंसेक्ट्स इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ओके बेटा, ये देखें ये वही वाला फ्लावर है, लेकिन अब ये उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया हमने। और यहाँ पे आप बड़ा क्लियरली आपको आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि इसमें किस तरीके से वो जो इंसेक्ट है वो किस तरीके से उसके अंदर जो है वो जा रहा है। और उसके अंदर जाने की वजह से मतलब इट्स लाइक इसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इसके ऊपर वो स्टक हो रहे हैं। देखो स्टिग्मा है, फिर ये जो है वो एंथर्स हैं और इसके साथ है, और ये नील पेटल है। और ये बेटा पूरी तरह से इसके अंदर मूव करता है। और ये देखें ये पोलन ग्रेन्स आपको जो है वो पोलन ग्रेन्स इसकी बॉडी के साथ अटैच होते हुए जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यू कैन सी, तो ये देखो ये बेटा ये उसके, और ये यहाँ पे जो है दे है दीज आर द नेक्टर गाइड्स। तो ये बेसिकली ये जो इसके ऊपर ऐसे आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ना, तो ये नेक्टर गाइड्स हैं। और विद द हेल्प ऑफ दीज नेक्टर गाइड्स वो उसके साथ जो है वो मूव करता है। तो आप बड़े क्लियरली इसको भी देख सकते हो, ये नेक्टर गाइड्स आपको ये यहाँ लिखा हुआ ये नेक्टर गाइड्स हैं। इससे आप ये सारा, और ये बेसिकली बेटा वो इंसेक्ट है जो इसको, तो दैट बिकॉज ऑफ दीज ब्राइट कलर्स ये इंसेक्ट इन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम हियर टू अनदर फ्लावर। ओके बेटा, अब ये वाला जो फ्लावर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ ग्रास फ्लावर। और ये वाला जो फ्लावर है इसमें एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसको बेटा बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड द मेल फ्लावर एंड दिस इज़ द फीमेल फ्लावर बिकॉज इट इज़ हैविंग द स्टिग्मा इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। ये स्टिग्मा है और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है। इसमें स्टेमन भी हैं और का ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और ये जो है वो ओनली और ओनली मेल फ्लावर बेटा इसके अंदर है। और ये देखो ये आपको एंथर्स नज़र आ रहे हैं, फिलामेंट है। और बेटा इसके जो इसका जो एंथर है इट इज़ हैंगिंग आउटसाइड, ये बाहर की तरफ ऐसे हैंग कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बेटा जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल इन साइज़ होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके ये फ्लावर नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत स्मॉल होता है। और इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है उस इम्पॉर्टेंट फ़ीचर में कि इसके जो एंथर्स हैं वो पेंडुलस हैं, ये बाहर की तरफ देखें हैंग कर रहे हैं। और हल्की सी भी हवा जब चलेगी ना तो ये हिलने लग जाते हैं। और ये बेटा इसको बोलते हैं फेदरी स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इसका फेदरी है जो किसी भी तरह के पोलन ग्रेन्स को बड़ा आसानी से जो है वो कैच कर सकता है। तो ये भी आप सारा जो है, सो दिस इज़ द इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर सॉरी विंड पोलिनेटेड फ्लावर। और इससे पहले जो हमने देखा था वो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो है वो हमने ऑब्जर्व किया था। बेटा इसको अगर आप देखो ना तो ये वही वाला जो इंसेक्ट पोलिनेटेड सॉरी विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, ये ओरिजिनली ये आपको इस फॉर्म के अंदर ही नज़र आ रहा है। ये वही इसके फेदरी स्टिग्मास हैं जो बाहर निकले हुए हैं। और ये जो है वो इसका पेंडुलस ये इसका पेंडुलस एंथर है। और ये फेदरी स्टिग्मा जो हैं ये भी आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। और बेटा ये जो है ये एक्चुअल पिक्चर है एक इंसेक्ट विंड पोलिनेटेड फ्लावर की। यही वाली जो पिक्चर है, इसी पिक्चर को जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसी को उन्होंने जो है वो बड़ा करके और ज़्यादा जूम करके इस पिक्चर के अंदर जो है वो उन्होंने इसको दिखाया है। और ये वाला जो है ये आपको यही चीज़ नज़र आ रही है। सो दिस ऑल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो
फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे फ्लावर्स होते हैं कि दे आर नॉट विजिबल एट ऑल को उनको मतलब शायद आपको कभी आपको आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो हैं ये फ्लावर्स ऐसे भी हो सकते हैं। ओके बेटा, ये देखें, ये टेबल इसमें इस पूरे टॉपिक में ये टेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ लिखा हुआ है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। मैंने आपको इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर भी दिखाया, विंड पोलिनेटेड फ्लावर। तो सबसे पहले साइज़, जनरली लार्ज एंड जनरली स्मॉल। कलर जो है, पेटल्स आर ब्राइटली कलर, वो देखें कितना पर्पल कलर की वो फ्लावर पेटल्स थी, और पेटल्स आर ग्रीन, आपने देखा डल कलर्ड। उसके बाद जो नेक्टर्स हैं, प्रोड्यूस नेक्टर्स, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर्स, तो यहाँ तो इंसेक्ट्स ने आना ही नहीं है। फ्लोरल अरेंजमेंट जो है, फ्लावर फेस अपवर्ड, वो आपने देखा फ्लावर की शेप अपवर्ड होती है। और यहाँ पे जो है वो फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर द इजी शेकिंग, और स्टेमन एंड स्टिग्मा इनक्लोज्ड इनसाइड द रिंग ऑफ द पेटल्स। तो यहाँ बिल्कुल उन्होंने उसको बंद करके रखा होता है, वो उसके अंदर, यानी अगर हम वो क्लाइटोरिया जो पर्पल कलर का फ्लावर का था उसको खोलें तो फिर अंदर से जो है वो हमें वो नज़र आता है, अदरवाइज़ वो हमें नज़र नहीं आता। तो इसी तरह से जो है हैंगिंग आउट ऑफ द पेटल, ये भी आपने ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद पोलन ग्रेन स्मॉल इन नंबर प्रोड्यूस एंड हैवी एंड स्टिकी, और यहाँ पे जो है लार्ज इन नंबर प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस लाइट विद द स्मूथ सरफेस। और स्टिग्मा जो है वो यहाँ पे पिन हेड शेप्ड, नो ब्रांचेस, और यहाँ पे जो है वो फेदरी ब्रांचेस फॉर कैचिंग द पोलन ग्रेन्स। तो ये बेटा इस सारे का जो है। और जहाँ तक बेटा इसकी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स आपको जो है वो मैं लाइक उसका पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा, जिससे आप आराम से सारी हेडिंग्स जो है वो इसकी लिख सकते हो। वैसे हम इसकी हेडिंग्स में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपको मैं अभी जो है वो हेडिंग्स भी आपको वन बाय वन बता देता हूँ। ओके बेटा, द फर्स्ट हेडिंग इन दिस टॉपिक विल बी पोलिनेशन। ये देखिए पोलिनेशन है। सेकंड हेडिंग है सेल्फ पोलिनेशन। जी, थर्ड हेडिंग है बेटा क्रॉस पोलिनेशन, ये आप लोग यहाँ तक लिखोगे। और उसके बाद बेटा फोर्थ हेडिंग जो है वो है कंपैरिजन ऑफ विंड एंड इंसेक्ट पोलिनेटेड। ओके बेटा, जो नेक्स्ट इसमें हेडिंग है वो है एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो इसमें ये सारे का सारा जो है ये आपने यहाँ तक लिखना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बेटा जहाँ तक आपकी असाइनमेंट का ताल्लुक़ है, तो आपने अपनी असाइनमेंट में जो कुछ बोर्ड पे लिखा है वो आपने अपनी लेक्चर कॉपीज़ में लिखना है, और उसकी पिक्चर जो है वो आपने मुझे सेंड करनी है कि आप लोगों ने उसको लिख लिया है। और सेकंड नंबर पे आपने अपनी बुक के ऊपर हेडिंग्स लगा के उसकी पिक्चर भी जो है वो आपने मुझे सेंड करनी है, एक उसकी और एक ये। और ये जो सारा काम है ये आप मेरे नंबर पे नहीं भेजेंगे, ये मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करूँगा ग्रुप में। आप ये सारे का सारा बायो का काम जो है उस नंबर पे शेयर करेंगे, ताकि मैं वहाँ से प्रॉपरली चेक कर सकूँ कि किस किस बच्चे ने जो है ये सारे का सारा काम किया है।